Is it? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Sounds great. Okay, so see, let me give you a kind of a description. As you can see, the topic name. The topic name is today, like for the session, is resume and email formatting session. Not the building, but the formatting. Okay, most of the time, we use the ATS softwares. We ask, our friends, our mentors, that is my CVs or the resume format is good. Like, is it like the format which a company, company shortlist easily? These kinds of questions are in our minds, right? Every time. Okay. So see, there will be a formatting kind of a session today, plus the email also. Okay, email formatting used for when you share your mail or share your CV to the company via mail. Okay, so what kind of content you can write it on in the in the subject part or in the body part, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे. Is that clear? Any doubts? Yes, ma'am. No, ma'am. Any doubts? Anyone? No, ma'am. No, ma'am. Okay then. Can I start the session now? Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. Okay, so I'll start with yes, I'll start with resume building. Okay, let me share my screen now. Is it visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, sure. Everyone, please mute yourself, okay, because this session is getting recorded. Okay, so I need to share to those candidates who are unable to join this, right? When I take your name or when I ask any kind of a question, only then, then interact or unmute yourself. Meanwhile, you can, just mute yourself, just listen to this. Whatever doubts you're having, just unmute and ask it. Clear? Okay. So we are starting with the resume formatting today. Okay. The first part is the header. Header is, let me open up one CV. Someone CV. तो थोड़ा हम idea लगा पाएंगे उससे related. Okay. For example, Vikas CVs. Okay. There is a candidate named Vikas जो यहीं पे उसने कोर्स कर रखा है of I guess of front end and back end both. ठीक है. तो this is the header. You can see this is all the header counts in a header part. तो यहाँ पे ये चीज क्या है कि header आपका कैसा होना चाहिए. Your full name, your contact information में सिर्फ phone number and the professional mail address. Professional mail address. What do you what do you get this by this term professional? Professional, like there is no kind of cool boy or a cool kind of a thing कि हाँ cool Vikas or handsome Vikas, not that kind of a stuff here. It's simple. Vikas dot Singh official is also sounds kind of that thing थोड़ा informal में जा रहा है, but yes, we can count it on in a professional part. Vikas dot Singh official 121@gmail.com. ये हमारा प्रोफेशनल में काउंट होता है. ठीक है, कि सिर्फ आपके नाम से वो मेल आईडी बनी हो, ऐसा नहीं कि कुछ भी नाम आपने रख दिया हो और उसकी @ आपने gmail.com लगा दिया हो. दैट्स इट. ठीक है, योर फोन नंबर, योर फुल नेम एट द टॉप, योर मेल आईडी. दैट्स इट. एनी डाउट नाउ? एनी डाउट? No, ma'am. ठीक है. Now come in the LinkedIn part. Okay, you also mentioned the location here. Okay, let me write it on here. The location is not your address. Location is where you are looking for a job. Okay, somehow like see give me your example. Let me give you example. ये जो विकास है ये हाथरस यूपी का है. ओके, और मे बी ये जॉब देख रहा हो आउट ऑफ इंडिया या फिर जम्मू में या फिर नॉर्थ में लाइक हिमाचल साइड या फिर यहाँ साइड. ठीक है, एंड ही इज मेंशनिंग यूपी हियर. ओके, तो सीवी जो होते हैं ना, मोस्टली सीवी जो कंपनी जो कंपनी का सॉफ्टवेयर फिल्टर करता है वो उसमें लोकेशन डाल देंगे. वॉट एवर कैंडिडेट इज फ्रॉम द जम्मू एंड दिल्ली साइड, सिर्फ उसको शॉर्टलिस्ट करें. भले ही विकास
एबल है कि हाँ वो दिल्ली जाके जॉब कर सकता है, वो जम्मू जाके जॉब कर सकता है, बट वो यहाँ पे नहीं लिखा है ना, यहाँ पे सिंपल दिख रहा है यूपी, ठीक है। तो आप वहां की लोकेशन डालो जहां पे आप जॉब देख रहे हो, वो नहीं जहां पे आप हो, ठीक है। क्योंकि कंपनी आपको कॉल करके नहीं पूछेगी कि आपने लोकेशन यूपी की डाली है, क्या आप कंफर्टेबल हो पुणे के लिए या फिर मुंबई के लिए, कभी नहीं करेगी ये, ठीक है। तो कंपनी के लिए इजी करो कि जहां पे आप जॉब देख रहे हो वो लोकेशन यहाँ पे आप सिंपली डाल दो, ठीक है। योर लिंक्डइन आईडी ट्राई करो, इसी तरह डालो, इसी फॉर्मेट में, पूरा लिंक मत डालो। योर गिटहब अगर इफ यू आर हैविंग इट, ठीक है, या फिर कोई प्रोफेशनल अगर आपका वेबसाइट है या फिर पोर्टफोलियो है कोई, सो यू कैन मेंशन दैट आल्सो, ठीक है। ये आपका ऑप्शनल होता है, बट हाँ रेलिवेंट भी होता है, अगर आप प्रोजेक्ट में हो, फ्रेशर हो और नीडेड है वहां पे, तो आप ऐसा डाल सकते हो लाइक दिस, ठीक है। आपका पूरा नाम, आपका फोन नंबर, योर मेल आईडी प्रोफेशनल, लिंक्डइन आईडी एंड गिटहब अकाउंट, ओके, एंड द लोकेशन, लोकेशन इज नेसेसरी। ये इस पूरे हेडर पार्ट में किसी को कोई डाउट? No, ma'am. एनीवन? ओके देन। No. तो अब हम आते हैं ऑब्जेक्टिव और समरी में, ठीक है, जो क्या होता है ये वाला पार्ट। और सी, जैसे जैसे ये सेक्शंस लिखे हुए हैं ना कि पहले आपका हेडर आना चाहिए, उसके बाद समरी, तो ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने समरी ऊपर लिख दी, उसके बाद आप अपनी एजुकेशन लिख रहे हो, उसके बाद आप अपनी लास्ट में अपना आप फुल नेम और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, नहीं, दिस इज नॉट द फॉर्मेट नाउअडेज व्हाट द कंपनी इज सीकिंग, ठीक है। सबसे पहले आपका नाम, आपका ये सब हेडर आ गया, उसके बाद आपकी समरी, समरी में आप क्या लिखो, ठीक है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसा देखा, वो चैट जीपीटी करते हैं एंड दे जस्ट पुट इट ऑन, ठीक है, आप कर लो, नॉट अ बैड आइडिया, ठीक है, बट आपको पता हो कि आपने उसके अंदर क्या लिखा है, ठीक है। कंपनीज ये भी पूछते हैं कि ओके आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आप कुछ और बोलोगे, आपके सीवी में कुछ और लिखा है, वो चीज मिसमैच होती है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आप जॉब से, आप इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड से या फिर जिस कंपनी में आप जा रहे हो उससे आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर क्या अभी तक की आपकी समरी रही है और क्या आपके करियर गोल्स हैं, वो सब 2 से 3 सेंटेंसेस में आपको कवर अप करने होते हैं, ठीक है। वो सब आपको 2 से 3 सेंटेंसेस में कवर अप करने होते हैं। आजाद, समर्पित, यू गाइस आर लेट, नॉट एन इशू। ओके, ठीक है, तो समरी समझ में आ गया। समरी में आपको अपनी स्टेटमेंट लिखनी होती है जो हाईलाइट करता है कि अभी तक आपने क्या किया है, क्या आपके कैरियर गोल्स हैं, और व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल, कि उस कंपनी में या फिर ये जॉब पाकर, जैसे आप डेवलपर की जॉब देख रहे हो या फिर एनालिस्ट की जॉब देख रहे हो, अगर वो आपको मिलती है तो आप क्या कर सकते हो उससे, मतलब कितना आप आगे बढ़ सकते हो या फिर कंपनी को क्या दे सकते हो, ठीक है। टेलर कर लो अपने आईटी डोमेन से, ठीक है, या फिर जो स्पेसिफिक जॉब अप्लाई कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी बहुत बड़ी है, डिलॉयट है या फिर कोई विप्रो है, ऐसी है, ठीक है, कि वहां पे आपको थोड़ी बहुत शुगर कोटिंग करनी ही पड़ेगी, तो वहां पे अपना जो ऑब्जेक्टिव है टेलर कर लो कि हाँ माय ड्रीम जॉब इज और माय ड्रीम कंपनी इज डिलॉयट, और कि मैं सिर्फ डिलॉयट में ही जॉब अपनी देखना चाहता हूँ, मैं डिलॉयट को ये दे सकता हूँ, वो दे सकता हूँ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग, ये आपका ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बट जनरली इसको आप कॉमन ही रखा करो। यहां तक डाउट किसी को? इसमें कोई डाउट समरी में? No, No, ma'am. ma'am. No, ma'am. नो, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द हेडर पार्ट, ठीक है, कि हेडर आपको कैसा होना चाहिए और समरी। चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। इसने लिखा है आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर विद स्ट्रॉन्ग सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम प्रूवन बाय सॉल्विंग 700+ क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, ठीक है। तो इसने अपनी अचीवमेंट लिखी है जो और इसने सिर्फ बोल्ड भी किया है ताकि कंपनी को फोकस पड़े इस पे, ठीक है। और आई हैव अचीव्ड 5 स्टार रेटिंग ऑन हैकर रैंक, ये भी इसने हाईलाइट कर रखा है ताकि ये सब कंपनी की नजर में जाए और इसकी जो सीवी है अलग लगे, और और कॉमन सीवी से हाईलाइट किया है इसने अपने प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज को,
डेप्थ नॉलेज है जैसे जावा कोर की, जावा ईई की, इसने मतलब सब कुछ अपना लिख रखा है. एडिशनली आई हैव अ सॉलिड फाउंडेशन इन सॉफ्टवेयर वेब डेवलपर और डीपली पैशनेट अबाउट कोडिंग, ऑलवेज सीकिंग टू एनहांस माय स्किल्स. गेटिंग इट कैसे इसने लिखा है कि कंपनी कोई चीज क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी कि हाँ यार इसे बहुत कुछ आता है और ये बहुत कुछ सीखना चाहता है. समझ आया? इसमें किसी को डाउट है? Anyone? नहीं. हाँ मैंने ये बोला था कि म्यूट करके रखो, बट ये नहीं बोला था कि बिल्कुल थ्रू आउट सेशन रखो. आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हो. मैम एक डाउट है कि जो आपने हेडर One में by बताया, one, guys. Please raise your hand. I'll take the name and then you can ask. Okay. Yes, Abhinav. No, ma'am. मुझे कोई doubt नहीं. Yes, Roshan. मैम जो हेडर पार्ट है उसमें लिंक्डइन का जो लिखा हुआ तो उसमें रेफरेंस मतलब लिंक्डइन का पूरा आईडी मेंशन करना होगा और लिंक भी डालना होगा वहां पे कि ओनली लिंक्डइन शो कर देना. ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली चीज मैं इस पे भी क्लिक करूंगी ना, इसका लिंक्डइन अकाउंट खुल जाएगा. तो ये किसी और मेथड से होता है जो आई गेस मुझे भी नहीं आता है. ठीक है, तो बेटर है अगर आपको नहीं आता है, क्योंकि इसमें मैं क्लिक करूंगी ना इसकी लिंक्डइन आईडी खुल जाएगी. सी, ठीक है. ओके मैम. तो उसने कुछ पीछे कुछ कर रखा है उसने बैकएंड में. ठीक है, आप सिंपली अपना वो डालो ना, जैसे यहाँ पे दिखा रखा है. आप ऐसे अपनी लिंक्डइन आईडी डाल दो कॉपी करके यूआरएल. ओके मैम समझ गया. ठीक है, वो डेवलपर्स कर पाते हैं वैसे. यस मैम Yes, समझ गया वो क्या करना है, समझ Yes, गया. Verma, please tell me. Madam, Yes. for LinkedIn means for only to the view the persons, no, madam, means for the organization's connectivity like that, no, madam. Not getting it, Verma. Uh, Come again. means for the LinkedIn means until now what we have to do, what we have to achieve only like that part only, no, madam. No, I'm not getting. I'm still not getting it, Verma. Can you please speak in Hindi? Yes, madam. For what we have to achieve ourselves and present what we are doing and present what we are going to do. Anyone getting it? What his doubt is? Yes, he's saying like LinkedIn profile is like showcasing our achievements and working profile Yes, organization. obviously. Yes, yes, yes. He's LinkedIn is asking, is it? something. He's Uh-huh. asking for that we can show that over there as a reference. He don't know about that. He's asking that question. See, there is a kind of a round like in a company nowadays that they go with the LinkedIn screening account. You know, they screen your LinkedIn account as well. Whatever you have written in your CV is matching with your LinkedIn, LinkedIn past or the mentioned companies or not. Okay, so you have to, you have to be updated with the LinkedIn. आप अगर developer हो तो please post all kinds of stuffs or all kind of codings you have done. Okay, if you are in SAP, if you are in Workday or these kinds of professional courses, please mention whatever you have done a work in, in that particular course. ठीक है, आपको शोकेस करना पड़ेगा तभी कंपनी को रेलिवेंट लगेगी वो चीज कि हाँ जो इसने सीवी मेंशन कर रखा है वो सब इसके लिंक्डइन से भी मैच होता है. लिंक्डइन नाउअडेज की आपको वेरीफाई करता है लाइक फॉर इंस्टा कि हमारा सोशल और सोशल लाइफ हमारी वेरीफाई करता है. लिंक्डइन हमारी प्रोफेशनल लाइफ वेरीफाई करता है. ठीक है, Yes, madam. ओके देन. एजुकेशन वो दोनों कंप्लीट हो चुके, इसमें डाउट नहीं है ना किसी को? Although I'll share the recording as well, okay, तो आप एक बार वापस से go through कर सकते हो. बाकी I don't think so इसकी नीड होगी. चल एडुकेशन पे आते हैं. एडुकेशन में योर डिग्री में बैचलर मास्टर. अगर आपकी हाईएस्ट डिग्री मास्टर्स है प्लीज मेंशन मास्टर. अगर आपकी हाईएस्ट बैचलर है प्लीज मेंशन बैचलर. आप दोनों मत करना. अगर आपकी बैचलर भी है मास्टर्स भी है, यहाँ पे सिर्फ हाईएस्ट डिग्री आती है. ठीक है, द ईयर, ठीक है, and the branch whatever you have done the course, the relevant field. ठीक है, institution में क्या आ जाएगा? Not the college name, ये necessary नहीं होता है, but हाँ if you done any kind of
सर्टिफिकेशन, ठीक है, वैसे उसका अलग से सेक्शन बन जाएगा, बट अगर आपको लगता है कि मुझे शोकेस करना है, ये ऑप्शनल है, ये टोटली ऑप्शनल है, ठीक है। कॉलेज का नाम कंपनीज नहीं पूछती है, बहुत रेयर इन केस, ठीक है। और सर्टिफिकेशन का आपका सेक्शन नीचे बन सकता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। ग्रेजुएशन डेट एंड मंथ ईयर ये सब आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे इसने लिखा ना 2022, तो आप यहीं पे राइट साइड में अपना मेंशन कर सकते हो, ठीक है। ये भी नीडेड नहीं है, जीपीए भी एज सच नहीं मांगते, वो तो आपके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में ही हो जाता है। तो एडुकेशन में आप क्या कर सकते हो, योर डिग्री एंड द ग्रेजुएशन, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। यहाँ पे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने ठीक है, इन्होंने डिप्लोमे मेंशन किया है और इन्होंने ग्रेजुएशन मेंशन की है। जो आप मोस्टली कर सकते हो आप ये कर सकते हो, सिर्फ जीएल बजाज वाला जो इसने बीटेक कर रखा है वो इनफ रहता है कि कंपनी को आपके ग्रेजुएशन से फर्क पड़ता है और आपकी ब्रांच से, जो इनकी ब्रांच है ना, जो क्या थी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और आपके इससे सिर्फ ये मेंशन करो जुलाई 2024 अक्टूबर 2021 से टेन्योर पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, ये आपके एक्सपीरियंस में लिखने की जरूरत पड़ती है, वर्क एक्सपीरियंस में, बट आप सिर्फ जुलाई 2024 हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। एडुकेशन में किसी को डाउट? पूरा भरना नहीं होता कभी भी, सीवी को आप जितना मिनिमल रखोगे, जितना प्रिसाइज रखोगे, जो नीडेड है सिर्फ वो डालो, ठीक है। क्योंकि बाकी सारी चीजें या तो आप कवर लेटर में डाल सकते हो या फिर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल से पता चल जाएगी उन्हें, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें चली जाएंगी, ठीक है। तो सीवी में सिर्फ उतना आप लिखो, उतना आप फिल करो जितना रेलिवेंट हो, ठीक है, और नीडेड हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने जैसे कर रखा है, ये नीडेड नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्पेस लेगा। सीवी ट्राई करो, एक ही पेज में बन पाए तो वेल एंड गुड, मैक्सिमम 1.5, ठीक है। ज्यादा एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो 2, ठीक है। 3 से 4 सीवी पेजेस में कोई सीवी नहीं होता, वो कवर लेटर बन जाता है फिर। एडुकेशन में किसी को डाउट? मैम इसमें सेशन ही आता है क्या? क्या? जिस सेशन में डिग्री की है उसी कोडिंग? यस, सॉरी, यस मनीष। मैम जैसे सेशन में डिग्री की हो वही लिखा जाता है या फिर जैसे पास आउट होता है उसमें लिखा जाता है? जैसे किसी ने 3 साल की डिग्री 5 ईयर में की हो उसके रिगार्डिंग। उससे उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कब हुई है वो आप डेट लिखो वहां पे। आप क्यों शोकेस करना चाहते हो मैंने कब से कब तक किया है, क्या पता बीच में आपकी बैक आ गई हो, आप थोड़ा ना क्लैरिफाई करते फिरोगे सबको। आप तब का ईयर डाल दो, मंथ एंड ईयर, जब आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, सिंपल, ओके। ठीक है। वो मेजरमेंट यस राजीव। तो मेजरमेंट लेना है। यस राजीव। हाँ सिंपल का। ओके देन, एडुकेशन में किसी को डाउट था या है? एजुकेशन में मैडम नो? ओके, स्किल्स पे आते हैं, ठीक है। और ये सेक्शन आपका ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है। हेडर, ऑब्जेक्टिव, योर एडुकेशन, देन योर स्किल्स, नॉट द वर्किंग एक्सपीरियंस, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस आपके नीचे आते हैं, ठीक है। पहले आप वो चीजें दिखाओ जिसके लिए आप जा रहे हो, ठीक है। और हाँ यही सब डालो, समरी उसी जॉब की डालो जिसके लिए आप जॉब सीख कर रहे हो। आपका अगर एक्सपीरियंस सेल्स का रहा है, नाउ यू आर स्विचिंग योर करियर इनटू आईटी, तो आप यहाँ पे सेल्स के बारे में नहीं लिखोगे कि आई हैव अ गुड दिस और आई कैन अचीव दैट मच सेल्स, नो, द कंपनी इज नॉट लुकिंग फॉर दैट। आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में लिखो कि आई हैव डन और आई एम हैविंग सम ऑफ द सेल्स एक्सपीरियंस, बट नाउ I have done the analyst course. Now I'm very, experienced in SQL part or blah blah blah. So, ठीक है, and I'm very passionate about these kinds of jobs now. तो वो सब आप मेंशन को कंपनी वही देखेगी। Getting it? एडुकेशन फिर आपका आ जाएगा मोस्टली आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है। मास्टर से तो चलो मेंशन कर दो, ठीक है, बट हाईएस्ट ज्यादा प्रेफरेबल होती है। एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन योर स्किल्स पार्ट, ठीक है। स्किल्स में वो स्किल्स आप मेंशन करो जिसके लिए आप जॉब देख रहे हो। पुरानी कोई स्किल नीडेड नहीं होती है, ठीक है। आप अगर डोमेन चेंज कर रहे हो मोस्टली वहीं पे ध्यान दो कि अगर आपने 4 साल किसी और डोमेन में काम कर रखा है वो भी स्किल्स मेंशन कर रहे हो,
एंड एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी काउंट कर लेगी, नहीं, उसको उसी स्किल से बेटर रहेगा जो जेडी में लिखा है। और ट्राई करो जो जेडी में स्किल्स लिखे होते हैं ना उन्हीं पे ज्यादा फोकस करो, ठीक है, कि वो मेरे सीवी में है कि नहीं है, नहीं है तो ट्राई करो उसको थोड़ा लर्न करके अपनी सीवी में पुट ऑन करने का, ठीक है, अपना सीवी वैसा बनाओ जैसा कंपनी का जेडी हो, ठीक है, कि हाँ मुझे ऐसा कैंडिडेट चाहिए, तो वो सब आपकी सीवी में मेंशन हो, नॉट सब बट एटलीस्ट 70-80% जो कंपनी देख रही हो, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स ट्राई करो ऐसे ही फॉर्मेट में लिखा करो, सॉफ्ट स्किल्स की तो बात मैं नहीं कर रही, आप सब आईटी के हो तो टेक्निकल स्किल्स ही, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एक सेक्शन बनाओ, उसमें कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, ठीक है। वेब डेवलपमेंट का बनाओ, उसमें क्या क्या आता है, अगर वेब डेवलपमेंट नहीं आता है पूरा ही आप रिमूव कर देना, ठीक है। डेटाबेस में आपको क्या क्या आता है, टूल्स क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या क्या आते हैं, कोई और अगर आपको लगता है कि कोई और सेक्शन है, ठीक है, तो वो आप डाल सकते हो, मतलब ऐसे करो ना कंपनी को पता चलेगा, अच्छा ठीक है ये आता है ये आता है। एक लाइन वाइज लिख दोगे ना तो वो भी थोड़ा मिसमैच करेगा, अच्छा ये भी आता है, ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई, ये तो टूल हो गया, उसको खुद फिल्टर आउट करना पड़ेगा। इससे अच्छा है तुम उसको खुद फिल्टर आउट करके ही दे दो। इसमें किसी को डाउट कुछ, एनीवन? मैम नो? Okay, only Abhinav is not having doubt, so I can expect everyone is having doubt. ऐसा कुछ है? No. Say no, No. guys. मुझे पता चले ना कि हाँ किसी को डाउट है तो I can repeat that thing. Madam, for mechanical designing section also same only, madam. See, वर्मा मैं यहाँ पे बिल्डिंग नहीं कर रही हूँ, वापस मैं आपको समझा रही हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर रही हूँ, Yes, madam. ठीक है। तो मैं आपको फॉर्मेटिंग समझा रही हूँ, मैं आपको ये नहीं बता सकती कि अगर आप SP3D कोर्स के हो तो आप क्या डालो, No, दैट इज फॉर द इसमें बिल्डिंग है ना, Yes, वो ma'am. ट्रेनर आपको बता देंगे जब मैं वो करवाऊंगी। Yes, अभी ma'am. सिर्फ फॉर्मेटिंग चल रही है तो वो आप उसमें सिर्फ अगर डाउट है तो उसमें से पूछ लो, Okay, ma'am. ठीक है। चलो, Yes. तो हमारा स्किल सेक्शन हो गया, ठीक है। फिर आते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू आर अ फ्रेशर वेरी इंपॉर्टेंट, अगर एक्सपीरियंस तो मैंडेटरी, ठीक है। ये तो बहुत ऐसा है कि कंपनी आपको फिल्टर ही प्रोजेक्ट बेसिस पे करेगी, या फिर अगर आप उस कंपनी में जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट वाइज ही आप काम आपको रोल देगी कि हाँ ये तो फ्रंट एंड का बंदा है, इसको ये वाला प्रोजेक्ट दो, ये बैक एंड का इसको ये दो, अगर ये दोनों आते हैं तो इसको बड़ा प्रोजेक्ट दे दो, क्योंकि प्रोजेक्ट जैसे आपको कंपनी से मिलते हैं ना उससे ज्यादा उससे पता चलता है कि कितनी इंपॉर्टेंस है। प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे कंपनी में, इंपॉर्टेंस नहीं, ज्यादा मिल रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स या फिर बहुत अच्छी अच्छी कंपनी से मिल रहे हैं तो बहुत लाइक आपको बहुत फिर एक्सपीरियंस है, या फिर अगर आप बहुत अच्छा आपको आता है, ठीक है। प्रोजेक्ट हमेशा लिंक के साथ मेंशन करो, ठीक है, प्रोजेक्ट नेम, ठीक है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन कि इस प्रोजेक्ट में क्या है, क्या क्या टूल्स यूज किए हैं वो भी मेंशन कर दो आप, ठीक है, प्लस यहाँ पे लिंक, राइट साइड में आपकी यहाँ पे लिंक होनी चाहिए, या फिर वो सारे प्रोजेक्ट्स के लिंक आप गिटहब पे होस्ट कर दो, ठीक है, ताकि कंपनी गिटहब अकाउंट आपका खोले और सारे प्रोजेक्ट्स देख ले कि हाँ कैसे कैसे आपने बना रखे हैं, ठीक है। या तो यहाँ पे आप लिंक भी डाल सकते हो राइट साइड में सारे, या फिर आप गिटहब पे सारे पोस्ट करके आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन लिख दो कि हाँ मैं ये प्रोजेक्ट बनाया और इसके अंदर कैसा रहा है, एटलीस्ट 2 से 3 लाइन की डिस्क्रिप्शन हर प्रोजेक्ट की। फ्रेशर हो तो 2 प्रोजेक्ट तो आप डालो ही डालो, एक्सपीरियंस है तो आप 4-5 तक भी जा सकते हो, ठीक है। इसमें कुछ पूछना है किसी को? एनीवन? मैम, यस। जैसे वो आपने प्रोजेक्ट का बताया, हाँ तो प्रोजेक्ट को गिटहब पे डाल के फिर वहां पे मेंशन करना है रिज्यूमे में, और इज लाइक जैसे पावर बीआई में पीडीएफ में और सेव कर लेते हैं तो उसका यूआरएल भी पेस्ट कर सकते हैं। मैं रिद्धि यूआरएल की बात कर रही हूँ, लिंक वही होता है। अच्छा। गिटहब मोस्टली डेवलपर्स के लिए ही यूज होता है, ये डेवलपर प्रोफाइल है ना जो मैंने खोली है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर आपके पास लिंक है प्लीज मेंशन द लिंक, कुछ और है तो वो आप मेंशन कर दो, उस ड्राइव को अपलोड करके ना उसका छोटा सा लिंक बना के राइट साइड में ओपन कर दो, जिससे आता नहीं लिंक लिखा होता है उस पर क्लिक करो, जैसे यहाँ पे लिंक्डइन लिखा हुआ है ना, और हाँ मैंने क्लिक किया तो लिंक्डइन अकाउंट खुल गया, यहीं पे एक सेक्शन बना दो लिंक का, है ना, हाँ। हाइपर लिंक डाल दो, उसमें क्लिक करेगा बंदा, उसकी पावर बीआई की वो खुल जाएगा पूरा डैशबोर्ड, ओके ठीक है, गॉट है इट। ना, वो हाँ। आप कर सकते हो।
कोई और डाउट किसी को प्रोजेक्ट सेक्शन में? मैडम एनीवन? समर्पित, अब्दुल, you are not even speaking guys, why? No. नो मैम नो। रोशन, समर, अमित, इशिका? नो मैम, नो। ओके, प्लीज स्पीक अप गाइस। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर अ फ्रेशर, ऑब्वियसली ये आपका सेक्शन होगा ही नहीं सीवी में, बट हाँ एक्सपीरियंस हो। और सबसे ज्यादा ये है कि अगर आप किसी और डोमेन के एक्सपीरियंस हो तो कैसे मेंशन करें। सी, सबसे मेन ये है एक काइंड ऑफ चीट कोड आप समझ लो इसे। अगर आपका एक्सपीरियंस अनदर डोमेन का है और जिस डोमेन के लिए आप जॉब देख रहे हो अब, ठीक है, तो उसको आप जितना मिनिमल रख सकते हो, जितना भी मिनिमल रख सकते हो, पास्ट एक्सपीरियंस को, न्यू जॉब में आप फ्रेशर हो, जितना मिनिमल रखोगे ना उतना ज्यादा बेटर है आपके लिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ उसी को शोकेस करते रहोगे कि हाँ मुझे सेल्स का एक्सपीरियंस है, मुझे एचआर का एक्सपीरियंस है, पुट ऑन करते गए कि मैंने ये काम कर रखा है, वो काम कर रखा है, समहाउ क्या पता कंपनी काउंट कर ले। नो, देयर इज अ बिग नो। कंपनी को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने पास्ट में कितना काम कर रखा है, कितनी सेल्स कमा रखी थी, क्या क्या था, कुछ भी नहीं। उसके लिए आप फ्रेशर हो, आपको एज अ फ्रेशर ही ट्रीट करेगी। सैलरी भी, स्किल्स भी, सब कुछ वो फ्रेशर लेवल की तरह ही देगी और फिर देखेगी। ये इसमें किसी को डाउट? जैसे कंपनी गैपिंग भी तो देखती है कि अगर उस हिसाब से तो मेंशन कर सकते हैं अभिनव प्लीज कम अगेन। मैम। जैसे कि गैपिंग किसी के 3 साल के गैपिंग है, अगर वो कोई जॉब कर रहा है तो बैक की डिटेल्स तो दिखा सकता है ना उसके। वो तो आपको मतलब दिखानी है अभिनव, मैं मना नहीं कर रही, आप मत ही दिखाओ, पूरा सेक्शन रिमूव कर दो। ग्रेजुएशन के बाद आपने जो जो काम कर रखा है, लेट सपोज 2020 में आप लोगों की ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है, 2020 में हो गई। मैं एक पेज ले लेती हूँ यहाँ पे। लेट सपोज आपकी ग्रेजुएशन हो गई 2020 में, ठीक है। उसके बाद आपने XYZ कंपनी है, XYZ, उसमें आपने काम किया 2021 से लेके 2024 तक, ठीक है, एज अ सेल्स मैनेजर, लेट सपोज, ठीक है। एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इनटू डेटा एनालिस्ट, लेट सपोज, ठीक है। 2024 से आपने 2025 तक सर्टिफिकेशन कोर्स किया, ठीक है, किसका? डेटा एनालिस्ट का, ठीक है। एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, 2025 में आप फ्रेशर हो, है ना, किसमें? डीए में, ठीक है। तो इसका सीवी कैसे बनेगा? ऐसा तो मैं नहीं बोल रही कि ये जो आपका पीरियड है रिमूव कर दो। अगर आप रिमूव कर दोगे तो 4 साल का, जो 3 साल का गैप है, ये कैसे दिखाओगे? कंपनी को क्या बताओगे कि 2020 में आपका पास आउट है और 2025 में आप जॉब देख रहे हो, तो 4 साल 5 साल आपके कहाँ गए? तो उसके लिए तो आप ये दिखाओगे ना, ये भी दिखाओगे, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपका जो प्रीवियस डोमेन है या फिर प्रीवियस जो आपने काम कर रखा है वो रिमूव ही कर दो, नहीं, जितना मिनिमल रख सकते हो। मिनिमल मतलब कंपनी का नाम लिखा, ठीक है, और नाम लिखा, उसके नीचे 3 से 4 पॉइंट्स में, 3 से 4, एक हो गया, 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, 4, मैक्सिमम 4, या फिर 4 भी नहीं, 3 पॉइंट्स, कि मैंने वहां पे ये काम किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे वो काम किया और मैंने यहाँ पे ये काम किया। यहाँ पे राइट साइड में ये चीज आ जाएगी, कौन सी? ये वाली, ठीक है। टेन्योर आ गया कि हाँ मैंने इतने से इतने टाइम तक काम किया, एज अ सेल्स मैनेजर किया, कंपनी के नाम के नीचे ये सब अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो, ताकि कंपनी को लगे कि हाँ आपका कोई गैप नहीं है। सिर्फ उसके लिए आपको काम दिखाना है। आपका बिल्कुल भी ये जो चीज है ना, आपका पार्ट बिल्कुल काउंट नहीं होगा। भले ही आपकी सैलरी 7 LPO हो, ठीक है, कंपनी आपको नहीं देगी ना काउंट करेगी, आपको एज अ फ्रेशर ट्रीट करके वो मार्केट में जो डिमांड है 4 to 5 LP फ्रेशर का, वही देगी, यस। ठीक है। इसमें किसी को डाउट कुछ? मैम यस। मैम जैसे बिल्कुल फ्रेशर हूँ, हाँ, जैसे कोई इस 5 ईयर में कुछ भी ना करा हो तो मैम फिर मैम ज्यादा गैप हो तो
वो तो गैप हो गया ना, उसके लिए तो फिल करो जी। गैप, उसके लिए तो कभी आपका सीवी शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा, उसके लिए तो बिल्कुल Only- पॉसिबिलिटी ही नहीं है डियर, बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है फिर तो कि आपका सीवी शॉर्टलिस्ट होगा। अगर इतना ज्यादा गैप है, एक साल भी गैप ज्यादा हो जाता है, मैक्सिमम कंपनी 6 to 7 months तक का गैप ना काउंट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि आप मेडिकल इश्यू लगा सकते हो, आप उसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट हाँ, अगर वो गैप 1 साल से ज्यादा का है या फिर 1 साल है, कंपनी ऑब्वियसली माइंड में क्वेश्चन है कि सर गैप है क्यों, क्योंकि गैप कब होता है, जब आप एबल ही नहीं होते हो आपको जॉब मिल पाए, और जॉब आपको अगर मिल ही नहीं रही है 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल से, मतलब आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, कंक्लूजन तो यही निकलेगा ना। मैम जैसे गैप में बीटेक के बाद गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की थी हाँ, एज ए सीडीएस, तो वो रिटर्न तो हो रहे थे लेकिन इंटरव्यू नहीं हो रहे थे 2-3 बार से। तो तो कितने उसमें टाइम क्या तक का क्या था वो गवर्नमेंट जॉब की जो प्रिपरेशन किया आपने? मैम 2.5 साल। 2.5 साल किया, और उसके यस बाद कोई वर्किंग रहे आप? नहीं, अभी तो उसी के बाद जॉब देख। मुश्किल है शुभम, थोड़ा मुश्किल है ये। आप या तो ये करो कि आप कोई इंटर्नशिप डाल दो, जो सर्टिफिकेशन कोर्स यहाँ से कर रखा है ना आपने, वो 1 साल का वहां पे दिखा दो, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको दिखाना पड़ेगा पुराना। कंपनी के पास देखो शुभम, एक जॉब प्रोफाइल के लिए ना 1000 सीवीज जाते हैं, ये मे बी उससे ज्यादा, तो आप ही को क्यों काउंट करें जिसके बीच में गैप है? गैप होना मतलब स्किल्स नहीं आते, या फिर आते हैं तो अच्छी तरह नहीं आते हैं, या कुछ आता ही नहीं है, यही सब कंक्लूजन निकलते हैं कंपनी के हिसाब से तो, है ना। तो फिर वो आप ही को क्यों एंटरटेन करे, इंटरव्यू के लिए क्यों शॉर्टलिस्ट करे, ठीक है। तो ये हम बात एक बार बिल्डिंग पार्ट में कर लेंगे, रिज्यूम बिल्डिंग जब सेशन होगा, कि उसमें आप कैसे कवर अप करोगे आपको, ठीक है। बट अभी मैं फॉर्मेटिंग की बात करें तो उसी पे आते हैं हम। गाइस 1 second, हेलो, प्लीज कनेक्ट मी आफ्टर हाफ एन आवर। यस, ओके। तो स्किल सॉरी वर्क एक्सपीरियंस पार्ट क्लियर है सबको? क्लियर है? यस मैम। ओके, अब हम आते हैं अपने सर्टिफिकेशन पार्ट पे, जो कि मोस्टली आप अगर फ्रेशर हो तो आपको ये सेक्शन डालना ही डालना है, क्योंकि आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, इंटर्नशिप है तो वो डाल दो, बट वर्क एक्सपीरियंस तो होगा नहीं, है ना। तो सर्टिफिकेशन ही काम आएगा फिर आपके, है ना। सर्टिफिकेशन में वही, जिस कंपनी से किया पहला उसका नाम, कौन सा कोर्स किया उसका नाम, और कौन से मंथ या फिर साल में किया वो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे लेट सपोज में जैसे डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं कि यहाँ पे हम 4 कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो आप ये मत करने लग जाना कि ज्यादा मेरा पॉइंट्स बढ़ जाएंगे तो मैं एक्सेल एक जगह, एसक्यूएल एक जगह, पावर बीआई एक जगह, ऐसे ऐसे लिखूं, नहीं। कंपनी को वो चीज बहुत वैसी लगती है कि बस काउंट अपने नंबर बढ़ाना चाहता है, इसीलिए, क्योंकि ये सब डेटा एनालिस्ट का पार्ट है, ठीक है। बट लेट सपोज अगर आपने जैसे एथिकल हैकिंग कर रखी है और एडब्ल्यूएस, तो ये दोनों डिफरेंट है ना। तो इसीलिए इस बंदे ने क्या किया, दोनों अलग अलग सेक्शन में डाले। बट अगर डेटा एनालिस्ट है तो यहाँ पे लिखो सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट, कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे ईयर और मंथ आ जाएगा। एडब्ल्यूएस कोर्स किसी और इंस्टीट्यूट से कर रखा है या फिर सेम इंस्टीट्यूट से, तब भी वो वैसा। यस Rajiv, I told you, please unmute yourself only when you have any kind of a doubt. Please don't unmute yourself कि आप बार बार इसमें बीच में डिस्टर्ब कर रहे हो। मैंने आप पहले ही बोला था इस सेशन रिकॉर्ड हो रहा है for the candidates who are unable to join. Don't disturb the class, Rajiv. Yes. ठीक है, सर्टिफिकेशन पार्ट क्लियर है? यस ओके। एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑब्वियसली आप अपनी अचीवमेंट लिख सकते हो, अचीवमेंट लाइक जैसे इसने मेंशन किया है वही सेम चीज इसने क्या किया है जिसने ऑब्जेक्टिव में लिखा था ना, क्योंकि इसके लिए अचीवमेंट है, और क्या पता सच में अचीवमेंट हो, ठीक है। तो वहां पे अपने अचीवमेंट डाल दो, जिससे ज्यादा मत डालो कि मैंने ये किया मैंने वो किया, बट जो रेलेवेंट हो उस प्रोफाइल से जिस प्रोफाइल के लिए आप जॉब देख रहे हो, ठीक है। बाकी जो रेस्ट रहता है, जो रेस्ट रहता है, जो जैसे लोग करते हैं कि अपना एक अलग से नीचे से बॉक्स बनाते हैं जिसमें अपने फादर्स नेम,
डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, प्रॉपर एड्रेस, मैरिड और नॉट, सिटीजन, ये कुछ भी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, कंपनी को आपके मैरिड से, आपके फादर्स नेम से, आपके इंडियन होने ना होने से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज अब ये वो वाला टाइम नहीं है ना कि अगर आप सिर्फ इंडियन हो तो इंडियन कंपनीज में आप अपना सीवीज भेज सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी सीवीज आउट ऑफ इंडिया भी जाती है कितनी बार, जो रिमोट या फिर हाइब्रिड जो जॉब्स करते होंगे, है ना। तो उसके लिए आप कोई एक बॉक्स मत बनाओ, ना ही ये सब डिटेल्स नेसेसरी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं नॉर्मल एक टिप्स के लिए, कुछ टिप्स के लिए। ठीक है, ट्राई करो जो लेंथ हो एक पेज का, जैसे मैंने बोला था मैक्सिमम 1.5 पेज चले जाओ। ठीक है, जो अपना फॉन्ट चूज करो, फॉन्ट इन द सेंस जो साइज होता है ना, या फिर जो स्टाइल होता है, जैसे ये है, इसका फॉन्ट ज्यादा छोटा नहीं है, बट इसने इसने अगर बड़ा फॉन्ट यूज किया होता ना तो ये शायद ये पूरा सीवी 2 पेज से चला जाता, बट इसने फॉन्ट 10 यूज कर रखा है। इसके लिए इसने 16 कर लिया है, जो चीज इसको हाईलाइट करनी है उसके लिए 16, ये इसने 12 किया है, ये इसने 10 किया है, ये इसने वापस से 12 किया है, ये इसने 10 किया है, वैसा वाला चीज। ठीक है, कि जो चीज एक हेडिंग हो या फिर सब हेडिंग हो उसको आप बड़ा रखो थोड़ा, या बोल्ड कर दो, और नीचे का जो डिस्क्रिप्शन है, जो फिर डिटेल्स है, उसको आप साइज कम कर दो। ठीक है, तो आप ट्राई करो जो फॉन्ट स्टाइल हो, एरियल हो, कैलिब्री हो, और भी बहुत सारे नॉर्मल हैं जो इजी टू रीड हो, ज्यादा करनी ना पड़े। जैसे ये मैंने यूज किया, ये वाला जो है ये जॉर्जिया है। ठीक है, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो, ये भी ठीक रहता है पढ़ने में। ठीक है, और साइज जो है आपका 10 to 12 रखो। मार्जिन्स, मार्जिन्स मतलब ये जो होता है ना, ये चीज जो लाइन आ रही है ना बीच में, टूल्स के नीचे जो लाइन आ रही है, वो सब मार्जिन जो है वो आप 1 इंच का ही रखो, क्योंकि गैप होना चाहिए। ऐसे नहीं बिल्कुल आप बिल्कुल इसको चिपका चिपका के आप लिख दो, थोड़ा गैप आप रखो। समरी के बाद थोड़ा सा गैप है एडुकेशन में, है ना, तो वैसे ही एडुकेशन के बाद थोड़ा गैप है प्रोग्रामिंग स्किल्स में, वैसा वाला गैप आप 1 इंच तक का ही रखो। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट ऑब्वियसली लेफ्ट साइड से हमेशा स्टार्ट होता है, तो वो तो सब करते ही हैं। बुलेट पॉइंट्स यूज करो, कोई भी अगर आपकी समरी है, जैसे आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखोगे, अपनी कुछ भी लिखोगे, पॉइंट वाइज में लिखो, इसमें तो है नहीं। ठीक है, पॉइंट वाइज में मतलब बुलेट पॉइंट्स लगा कि आपने अगर ये काम कर रखा, पैराग्राफ लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड कंसिस्टेंसी, यस, कि कंसिस्टेंसी मतलब जो आपका फॉर्मेट है थ्रू आउट, हेडिंग, फॉन्ट साइज, ये सब एक जैसा रहे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ब्लू पेज यूज कर लिया, वहां पे आपने पेज बॉर्डर लगा लिया, वहां पे आपने कुछ, ये बहुत इररिलेवेंट और बहुत इरिटेटिंग चीज होती है एज पर द मार्केट स्टैंडर्ड। So we are done with the formatting, resume formatting part. Okay, let me stop sharing my screen now. Yes, अब आप बताइए, अब किसी को कोई डाउट रिज्यूमे से रिलेटेड, बिकॉज वी आर गोना स्टार्ट विद द ईमेल फॉर्मेटिंग नाउ। से मैम मैक्सिमम पेज कितना होना चाहिए सीवी में फॉर एक्सपीरियंस कैंडिडेट मैम? 2 2 experience, if you are having experience of 2-3 companies which is relevant, तो 2, irrelevant है try to keep it of 1.5. Okay ma'am. Ma'am, can you share one CV as for example? I'll do it individually. Okay ma'am. Yes, anyone, for your doubt? Anyone? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Okay, so now I guess there are 26 students present here and I'm having their names also, so I can expect from all of you to have a good formatted CV. May I? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, and Yes, ma'am. also, Yes, ma'am. Yes, ma'am. yes, good. It sounds good. I'll share the recording, and also I'll share this Word file कि कैसे कैसे ये sections mention है, so you can put on in your CV. ठीक है? I'll share this on your WhatsApp groups. ठीक है? Okay चलो, ma'am. Okay, ma'am. Yeah, ma'am. can we start with email formatting now? Yeah, Yes, ma'am. just a second. I have one doubt. Yes, Nandita. So, yeah, for example, we have worked for one domain, same domain. For example, I'm from HR background, but now Okay. I have Workday.
Okay. So I have to format my resume. In that case, I cannot change my designation. It will be BGV issue later. So how can I convince the panel that I've worked for work? Jaypriti, please mute yourself. I hope I'm clear. Should I have to? Yes, Namita, I got your question. See, you don't need to change your designation. No, just mention Yeah. all the roles and responsibilities. See, if you have worked in Workday, some of the roles and responsibilities is matching with your current profile which you are looking for. Okay, please do mention in your roles and responsibilities. There is nothing to do with your designation. ठीक है, कंपनीज आपके डेजिग्नेशन पे इतना फोकस नहीं करेगी जितने आपके काम पे करेगी, आपने क्या क्या काम कर रखा है. हाँ, अगर आपको लगता है कि you have done some of the work of your current profile, please do mention with the bold thing, bold it, highlight that. ठीक है, ताकि वो काउंट हो, because that can be counted. ठीक है, irrelevancy काउंट नहीं होगी तो वो आपका काउंट हो जाएगा. Okay. Is it very evident that when they give the designation of like IT recruiter, for example, my current designation is IT recruiter, but I want to change it to Workday consultant. But will they not understand that, okay, this is like, kind of fake or like, formatted resume or something like that? See, then you can do one thing, Namita. You can put two sections there of the same company. Okay, one with the IT recruiter and the above one with this Workday part. Okay, when you have started working in these roles and responsibilities of Workday, please mention that definition ताकि कंपनी नीचे वाले पार्ट को IT recruiter को इतना फोकस ना करके Workday वाले roles and responsibilities को फोकस करे. Okay, got it. Yeah, thank you. Yes, welcome. Okay, so can I start with email formatting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, I'm sharing my screen again. Yes, is it visible? Yeah. Yes, ma'am. Okay then. See, email formatting is very necessary. Like I can put hundreds of very necessary there. Okay. Companies आज की डेट में, like see, not आज की डेट में, but I guess from a few years, ठीक है, no company is connecting you over the WhatsApp, over the calls, very few, okay, but the big companies is only dealing with the mails. Okay, even me, okay, including me, I'm not connecting with the companies over the WhatsApp. I'm not connecting them on the mobile phones because I'm not having their numbers also. Okay, so I just connect them with the mail. मैं उनको जीडी शेयर करती हूँ, और सही वो मुझे जीडी शेयर करते हैं, मैं उनको सीवी शेयर करती हूँ. हमारी सारी सारी जो भी कन्वर्सेशन रहती है वो ट्रायल पे चलती रहती है, वहीं पे ट्रायल मेल पे. ठीक है, तो यू हैव टू डू दिस थिंग ऑल्सो, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो आपकी हिस्ट्री में रहेगा. आपको कभी भी कोई कंपनी की डिटेल्स जाननी हो, आप उसका मेल ओपन करो विद देयर नेम, आपको पूरी डिटेल्स, पूरी कन्वर्सेशन मिल जाती है ना. दैट मेक्स सो इजी आपकी सारी चीज को, आपके सारे पास्ट रेलिवेंट चीजों को. ठीक है, तो इसमें ईमेल फॉर्मेटिंग में मैं आपको दो चीजें बताऊंगी. पहला तो ये कि कैसे आप जो टॉपिक्स होते हैं, लेट सपोज जनरल इंक्वायरी है आपका टॉपिक, आपका टॉपिक मीटिंग रिक्वेस्ट है, या फिर आपका टॉपिक कोई फॉलोअप लेना है, तो उसमें आप कैसे कैसे जो मेन जो जो चीजें हैं, जो बॉडी पार्ट है, वो कैसा कैसा आप यूज कर सकते हो एक हेल्प के लिए. ठीक है, दूसरी चीज ये आपको एक और चीज बताऊंगी, जो आप सीवीज भेजते हो कंपनीज को, उसके अंदर आप कैसी बॉडी पार्ट लिख सकते हो. गॉट इट? तो पहले मैं इससे स्टार्ट करती हूँ. ठीक है, just a second guys. Hello, yeah, please connect me after half an hour. Yes, so I'm starting with the general inquiry. ठीक है, जनरल इंक्वायरी, लेट सपोज आपको कोई क्विक क्वेश्चन है, आपको किसी से कुछ पूछना है, किसी से भी किसी भी चीज के बारे में. ठीक है, प्लीज मेंशन द टॉपिक. जो सब्जेक्ट पार्ट आता है ना, लेट मी ओपन माय मेल. ठीक है, मैं मेल में गई. ठीक है, जो सब्जेक्ट पार्ट आता है, यहाँ पे आप क्विक क्वेश्चन अबाउट, ब्रैकेट में जो क्वेश्चन का नाम है, जो भी आपको क्वेश्चन पूछना रिलेटेड टू योर सीवी, रिलेटेड टू योर प्रमोशन, रिलेटेड टू व्हाटसोएवर, ब्रैकेट में
आप वहां पे मेंशन करो, ठीक है। देन बॉडी पार्ट में always start with this. No matter whom you are mailing to, whom you are talking to, whom you are, requesting to, please mention this line, ठीक है। I can show my all the mails, ठीक है। See, whenever I'm sharing the JDs, I'm mentioning this. Hope you're doing well. I'm taking the follow-up. I'm still mentioning, hope you're doing well. Okay. Again, hope you're doing well. Okay, so this hope you're doing well is the kind of, you can see a kind of mandatory thing which we do in the professional world, corporate world, okay? So please mention hi, uska naam. If he is senior than you, then obviously sir or ma'am, okay? I hope this message finds you well, or I hope you're doing well. I hope you're doing good. These kinds of stuff, okay? I have a quick question about topic का नाम लिख दिया या फिर जो issue है, could you please provide some information on details, whatever जो आपको चाहिए, जो आपको need है, वो सब आप mention करके question mark. Thank you for your help. Best regards. आपका नाम, आपका position, आपका contact information. That's it. Don't keep it to that much lengthy कि हाँ मैं पूरा उसमें, we are not inquiring or we are not writing any kind of application here, है ना। एप्लीकेशन राइटिंग जब स्कूल्स में करते थे हम, वैसा हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। एक सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, जितना आपका छोटा हो, जितना आपका प्रिसाइज हो, उतना ज्यादा कंपनी को रिस्पॉन्स करने में इजी रहता है। ओके, लेट्स सपोज मैंने एक HR है उर्वशी, नेम्ड उर्वशी, एंड मैंने कुछ CVs भेजे गाइस, ठीक है, ट्रैकर एंड देयर आर द PDF अटैच्ड विद इट। इसको मैंने भेजे ऑन 3rd of May, ठीक है, एंड देन 5th of May को आई एम टेकिंग द फॉलो अप कि क्या रहा उसका। सो आई हैव wrote it, hello Urvashi, hope you're doing well, please share the feedback for the below shared profiles, also let me know if I need to share more profiles on the same, your own same, ठीक है। I have kept it very precise, ठीक है, very short, ठीक है, and very relevant, ठीक है। इसमें I don't think so कि मुझे इसमें कुछ ज्यादा एड ऑन करने की जरूरत पड़ी, ठीक है, या फिर नीड है, ठीक है। तो मैं ऐसा कह रही हूँ कि जितना आप शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखोगे अपने मेल्स को, कुछ भी फॉलो अप ले रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ज्यादा इजी रहता है, सामने वाला बहुत इमीडिएटली आपको रिस्पॉन्स कर सकता है उस पर। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? Yes. Yes, Understood Yes, now? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, yes. Okay. Then we are coming on meeting request. कोई मीटिंग रिक्वेस्ट करनी है आपको, आजकल तो आउटलुक में तो कैलेंडर्स आ जा रहे हैं, लाइक यू कैन इनवाइट देम थ्रू दिस कैलेंडर, थ्रू दिस इनवाइट, ठीक है। बट हाँ, कोई अगर मीटिंग रिक्वेस्ट करनी है आपको, तो हाय, अगेन सब्जेक्ट में मीटिंग डाल दो, डेट या टॉपिक डाल दो, या फिर किस के बारे में है मीटिंग वो टॉपिक डाल दो, ठीक है। आई होप यू आर डूइंग वेल, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अ मीटिंग विद यू टू डिस्कस, टॉपिक का नाम लिख दिया, आर यू अवेलेबल ऑन दिस टाइम या फिर डेट, please let me know your availability, thank you, best regards, simple, sorted, ठीक है। देन अगेन अगर कोई फॉलो अप लेना है, जैसे CVs के लिए आपको फॉलो अप लेना होता है, ठीक है, तो आई वांटेड टू फॉलो अप on my resume which I have forwarded on this date, ठीक है, to see if there have been any updates or if you need any additional information from me, simple, ठीक है। looking forward for your response, looking positive or expecting positive response from your side, ऐसा कुछ, ठीक है। जितना शॉर्ट, जितना प्रिसाइज, उतना इजी है आपको, और उतना उतना एक्सपेक्टेशन है या फिर उतनी प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है कि आपको रिस्पॉन्स जल्दी मिले। प्रोजेक्ट कोई अपडेट है, अगेन ये लाइन तो आपका बिल्कुल आप ऐसा है कि बिल्कुल आप रट लो, ठीक है। कोई मेल करो, चाहे कितनी बार करो, आपको ये मेंशन करना है, ठीक है। आई वॉन्टेड टू प्रोवाइड यू विद एन अपडेट। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट अपडेट देनी है, पास ऑन करनी है या फिर लेनी भी है, तो आप ऐसे पूछ सकते हो इजीली, ठीक है। कोई थैंक यू है किसी के लिए, किसी को भेजना है, तो आई जस्ट वांटेड टू थैंक यू, और वांट टू थैंक यू, हेल्प का नाम, फेवर का नाम लिख दिया, ठीक है, वॉज ग्रेटली अप्रिशिएटेड, थैंक्स अगेन फॉर योर सपोर्ट। कोई अपॉलॉजी है,
अपॉलॉजी में अपना इशू का नाम लिख दिया, ठीक है। कोई कंप्लेंट होता है, अगेन कंप्लेंट फॉर, इशू का नाम लिख दिया, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू अपॉलोजाइज और आई एम राइटिंग टू कंप्लेन फॉर दिस इशू, आई अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये सब हो गया। कोई कंफर्मेशन है, लेट सपोज आपको किसी ने मीटिंग इनवाइट भेजा एंड दे आर सीकिंग फॉर योर कंफर्मेशन, या फिर उन्होंने आपका इंटरव्यू शेड्यूल किया एंड यू हैव टू कंफर्म देन, hi, obviously the HR's name or the recruiter name here, I hope you are well, I'm writing to confirm, interview का details डाल दिया अपना, schedule डाल दिया, and please let me know this time is still works for you if there are any changes, these kinds of a thing। अगर जैसे कोई इंटरव्यू मेल आता है, आप ऐसे अपनी कंफर्मेशन दे दिया करो, ठीक है, कि I'm writing to confirm कि मैं यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा, looking forward to it, best regards। Any doubt? Any doubt? Everyone? No, ma'am. Only No, one ma'am. no. नो डाउट। Everyone, can you please respond so I'll get to know कि हाँ अब किसी को डाउट नहीं है। नो मैम। ओके, ठीक है। कुछ Okay, ma'am. जनरल टिप्स है अगेन, वही फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम @ कंपनी का नाम .com या फिर gmail.com या फिर yahoo.com whatsoever.com, ठीक है। कूल गाय, दैट गाय, नो, नहीं होता, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पे ना बहुत प्रॉब्लम देती है ऐसी मेल एड्रेस। आपको लगता है बहुत पुराना बना हुआ तो मैं यही यूज कर लूं, नहीं, एक मिनट लगेगा या फिर आई गेस हार्डली 5 मिनट्स टू मेक योर न्यू मेल आईडी, है ना। आप तो कितनी भी बना सकते हो, तो मेक इट, ठीक है। क्राफ्ट अ क्लियर और रेलिवेंट सब्जेक्ट लाइन, ऐसा नहीं कि आप सब्जेक्ट लाइन में पूरी अपनी पूरी कथा लिख रहे हो कुछ भी, है ना। सिर्फ जितना प्रिसाइज हो सके, आजकल तो चैट जीपीटी है, उसको बोल दो आप जो भी आपका डाउट हो कि हाँ मुझे इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट दे दो मेल के लिए, वो आपको दे देगा। हमेशा पोलाइट ग्रीटिंग से, भले ही आप किसी की कंप्लेंट कर रहे हो तब भी आप रूडली वो मेल कभी नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमेशा हाय, हमेशा डियर, ठीक है, डियर हायरिंग मैनेजर, डियर टीम, दैट, हमेशा पोलाइट, ठीक है। और अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करो, या फिर एंड में या फिर लास्ट में, ठीक है। माय नेम इज दिस, आई एम फ्रॉम दिस एंड माय पोजीशन इज दिस एट योर कंपनी, ठीक है। बी क्लियर एंड कंसाइज, वही कि ईमेल जिस पर्पस के लिए आप सेंड कर रहे हो सिर्फ उसी पर्पस तक हो, शॉर्ट पैराग्राफ्स, बुलेट्स, ठीक है। कुछ नेसेसरी अगर ब्रेकअप इंफॉर्मेशन है वो आप कर दो, और हमेशा प्रोफेशनल लैंग्वेज, कोई इमोजीज नहीं, ठीक है। कोई ऐसा नहीं जिसमें आप फॉर्मेटिंग करने लग जा रहे हो, नहीं, कीप इट सिंपल, ठीक है। हाँ, हमेशा कंक्लूजन दो, कॉल टू एक्शन हमेशा अपने लास्ट में दो, कि जो आप चाहते हो वो आप हमेशा अपने लास्ट में डाल दो, ठीक है। और फॉर्मली क्लोज करो, या फिर बेस्ट रिगार्ड, सिंसियरली, थैंक यू, दिस, ठीक है। और अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लाइक सिग्नेचर में जाके आप अपना ऐसा सिग्नेचर बना ही लो। सबको पता है ना कैसे बनाते सिग्नेचर, सेटिंग्स में जाके, नो, अकाउंट में जाके, No, ma'am. देयर इज अ सेक्शन सिग्नेचर, यहाँ पे जाके आप अपना कुछ भी ऐड ऑन करोगे ना सिग्नेचर में और यहाँ पे सेव कर दोगे, ठीक है। तो आप जब भी कोई न्यू मेल करो, लाइक लेट सपोज मैं न्यू मेल कर रही हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, ठीक है। मुझे बस यहाँ पे सब्जेक्ट ऐड करना है, सेंड करना है, वो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है, ठीक है। तो वो आप अपना पहले से डाल के रखो ताकि आपको बार बार मेंशन ना करना पड़े। सेटिंग्स में जाके, अकाउंट में जाके, देन सिग्नेचर पार्ट में। और हाँ, भेजने से पहले प्लीज अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज ईमेल्स कांट बी एडिटेड, अगर आप सोच रहे हो, ठीक है, वो एडिट नहीं हो सकते हैं। प्रोफेशनल एक सिग्नेचर यूज करो, सिग्नेचर लाइक सी, हम तो ऑब्वियसली में तो ये यही है रिगार्ड्स का, तो यही यूज होता है, ठीक है। बट अगर आपको करना है एक प्रोफेशनल सिग्नेचर तो वो आप कर सकते हो। माइंडफुल रहो टोन के लिए जो आप यूज कर रहे हो, रूड ना लगे, ठीक है। और हाँ, अगर आप ईमेल फॉर्मेटिंग कर रहे हो एज अ फ्रेशर, ठीक है, तो ये रहा आपका हाय, आपका नाम, आपका ये, आपका वो, ठीक है। एक मैं आपको फॉर्मेट दिखाती हूँ, दिस, ठीक है। ये मुझे एक मेल आया था एक कैंडिडेट का जिसका नाम था समीर अब्दुल, ठीक है।
उसने सब्जेक्ट में ये डाला, एप्लीकेशन फॉर सेल्सफोर्स डेवलपर रोल, ठीक है। उसने मुझे मेरा नाम लिखा या फिर डियर या फिर मैम या जो भी था। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, ठीक है। अपना नाम उसने अपना पूरा इंट्रोड्यूस किया, बताया कि वो कौन है, किस कंपनी में काम करता है, किस चीज में स्पेशलाइज्ड है, क्या क्या आता है उसको, और किस चीज के लिए एक्साइटेड है, ठीक है। और अवेलेबल भी है इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। टेक्निकल स्किल्स वहीं पे उसने अपनी ब्रेक डाउन कर दी। सेल्स फोर्स एडमिनिस्ट्रेशन में उसको क्या क्या आता है, सेल्स फोर्स डेवलपमेंट में उसको क्या क्या आता है, इंटीग्रेशन में क्या क्या आता है, टूल्स क्या क्या आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या आता है, ठीक है। अटैच इज माय रिज्यूमे फॉर द रिव्यू, उसने अपना सीवी भी अटैच कर दिया था इसके साथ, ये रहा इसका सीवी अटैच था, ठीक है। I would greatly appreciate your assistance in connecting with me with the Salesforce developer opportunities at your company. Thanks and regards. उसका पूरा contact information, phone number, mail ID, LinkedIn ID. What else the recruiters need? We don't need that much. Okay, we need some simple CVs to get easily downloaded, और जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन हो, हमें हॉस्पॉच ना करनी पड़े कि हम यहाँ से उसका नंबर फाइंड करें या फिर सीवी डाउनलोड करके उसकी मेल आईडी देखें या फिर लिंक्डइन आईडी देखें, सब कुछ मेंशन कर दो यहीं पे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अपना आप सीवी कभी भेजते हो कंपनीज में, कीप दिस सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर द रोल यू आर लुकिंग फॉर, अंडरस्कोर या फिर डैश अपना इमीडिएट जॉइनर, जिसपे कंपनी हाईलाइट करके या फिर इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। ये चीज। Now I'm done with the email formatting also. Let me stop sharing my screen. Yes. Now anyone is having any kind of doubt? Any doubt, guys? No, ma'am. Thank you. No doubt? No, ma'am. Okay. So should I end this now? Madam, the recording for the mailing section is there, na, madam? I'll share the recording over the group. Yes, madam. Yes, madam. Anyone? Apurva, Sarvesh, Akshi, Namita, Shubham, Roshan, Vikrant. No, ma'am. No, Yes, ma'am. ma'am. It's clear. मैम अगर पॉसिबल है तो वो सैंपल रेज्यूमे एंड ये सैंपल मेल सेंड कर सकती हो? कर सकते हो, ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है मैम व्हाट्सएप ग्रुप में मैम। हाँ। ओके मैम। एनीवन? मैं व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा जो आपका जिसमें आपको सेशन के बारे में पता चलता है, वही ग्रुप है। मैम उसमें तो रिज्यूम बिल्डिंग का भी मैम आपने शेयर नहीं किया था। मैं उसमें ही कर दूंगी डियर शेयर। ठीक है, ओके, थैंक यू। एनीवन, कोई डाउट? और शुड आई एंड दिस? नो मैम No, ma'am. थैंक यू ठीक है, सो नाउ आई कैन एक्सपेक्ट